you will see the catchment properties assessment. Today I will discuss. In last 2 days you have discussed a lot about how to calculate the discharge. Correct? Yes, sir. So what are the tools we are available? We calculate the discharge. So many of the method we have learned to calculate the discharge. Here you will see a very beautiful picture. You are able to see how many bridges are there in this picture. 3. 3 bridges, 1 river, 3 bridges, some mountains, and some your green vegetations, and river is covered. But you will see the all 3 bridges having the different level. 2 are the cable stayed, and 1 is the our normal bridges, which height is very less. So basically, any bridges, the planning of a bridges depend on its requirement. One of the requirement is the assessing the how much water is passing. Here we'll see this is the number 1 bridges, this is number 2 bridge, or this is bridge number 3. Here you will see bridge number 2 is at the lowest height. Means waterway requirement has been satisfied at this level. With the clearance, freeboard, etc., it is satisfied at this level only. However, due to gradient, level, and all other aspects, the bridge has been designed at higher level also. So, in bridge planning, this is the requirement of a minimum requirement. Our water discharge planning is a minimum requirement. Beyond lesser than this value, it will be spill through bridge. Correct? So whatever we will discuss today about the water bridge, or we will calculate whatever you have earlier also calculated the discharge calculation, which is the minimum requirement of a for fixing a formation level of a bridges with the help of discharge. Agreed with that point? So any bridge, the design discharge of which a bridge hydrological structure and its appurtenance are designed. So how many bridge के हमारे क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं जिसके लिए हमें डिजाइन डिस्चार्ज की जरूरत हो सकती है. जैसे कि आई हैव टोल्ड यू it is required proper and economical design, construction and maintenance of a bridge waterway. For calculation of any bridge waterway, we require design discharge. Foundation, yes, depth of foundation, it will be depends on our discharge, design discharge. Protection work, without designing the discharge, we can't do any protection work. This is the basic component requirement of by calculating the design HFL with the help of design discharge. Efflux, raising of our water due to any obstruction is known as efflux. Then freeboard and vertical clearance. So these all are cover depth, etc. All are requirement of our for the bridge. These components cannot be calculated without calculating design discharge. So my dear friends, without calculating the design discharge, we cannot plan any. So any bridge, if we are going to construct or rebuild, even for rebuilding, we have to be calculate the design discharge. So I think it has might be taught to you substructure code para 4 for the method of estimation of design discharge. So I will only sum up that. So how many methods are?
for estimate. Some 5 details are required to calculate. Based on that, you will calculate the synthetic unit hydrograph. You will prepare. Some 5 basic requirement was there. जो बारिश का पानी आ रहा है वो किस एरिया से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, याद आया? हाँ सर, एरिया, लेंथ और एलसी सर. करेक्ट. कैचमेंट एरिया, लॉन्गेस्ट स्ट्रीम, सीजी है, एंड सीजी से आपका फ्रॉम सीजी ऑफ द कैचमेंट टू द अवर ब्रिज लोकेशन का डिस्टेंस, एंड देन स्टैटिकल इक्विवेलेंट स्लोप. तो these 5 details were required. Correct? Is that clear? लास्ट कल आपको बताया होगा. Yes. So that I want to listen to you, and my class is totally on these 5 datas. जो 5 डाटा आपको निकालने थे, उन 5 डाटों को कैसे हम निकालेंगे उस पर डिपेंड करेगी मेरी पूरी क्लास. कल आपको सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ के 2 मेथड बताए गए थे कि एक मेथड है RBF 16 बताया था आपको. 2 मेथड बताए थे ना, एक अप टू 25 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एंड मोर देन 25 स्क्वायर किलोमीटर. करेक्ट? Yes sir. करेक्ट. सो अब RBF 16 से आपने 25 स्क्वायर किलोमीटर का जाना था, और सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है हम मोर देन 25 स्क्वायर किलोमीटर के लिए सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ बना के फ्लड एस्टिमेशन रिपोर्ट, ये भी आपने ऑलरेडी आपको बताया होगा. CWC की रिपोर्ट, 7 हाइड्रोग्राफ मेट्रोलॉजिकल जोन, 26 सब जोन है ना, उनसे ही इंपेरिकल फार्मूला हम उठा के कैलकुलेट करते हैं. दिस इज द फार्मूला फॉर द कैचमेंट एरिया ऑफ लेस देन 25 स्क्वायर किलोमीटर, which is a modified regional formula of RDSO report RBF 16. Here you will see that runoff coefficient I50, TC and A. For this calculation Q50, you require A, number 1 catchment area A. For TC, you require length C. A. TC के लिए आपको length of the longest stream you require. Height difference in elevation is required. Catchment area you required, and average catchment slope is required. So by any method, whatever which synthetic unit diagram, or you will say, calculate for less than 25 square kilometer or more than 25 to 2500 square kilometer, for all you required these data. So for 25 to 2500 square kilometer, as per the flood estimation report of Central Water Commission, for the concerned subzone, the A you are required physiographic parameter to be assessed, that is the catchment area in square kilometer, length of the longest stream, then length of the longest stream from a point nearest to the centroid to the bridge location, then statistical or equivalent slope. So we will concern about these all 5 datas. Here in this picture, what you are able to see, small hillocks. Yeah, basically if you see our earth is not a plain area. Somewhere hillocks, some hills, some area is plain, some area is downward, and some ekdam high hills. So this is the on average area. So whatever water is rain is coming. So there are many factors about the vegetation and storm direction. That is the depends on the meteorological department. But based on that, CWC has been calculated their empirical details for our calculation of the water. So if we will say a simple method of that, every water from coming hill comes from to the downwards.
coming from the hill goes to the downwards, and plain area. Water has a physical property that it will be goes from upper level to downward level. This is the basic number one principle. Every water cannot go from lower point to higher point without any pressure. If you have sent it through pressure, then only it will go from lower to upper. Otherwise, gravitationally, it will come from higher to lower. So the topmost point to the lowermost point traveling, it is the basic principle of a water. So this is the main things of we will calculate. So if we will say, so water or any river stream, whatever system is coming, you will see it just like a tree. You will see in a tree, there are some small branches and a leaf, or you can see a leaf, and all branches are coming to the big branch and then meet, and then this point is this is the area where water, whatever we coming, that will be came from this area. Correct? This is the boundary of that. On this location, the water will be coming from this area. For any other stream, for this location, this is the catchment area for this water. But if agar bridge is at this location, it means it is covering this catchment. Suppose this is A, this is B, and this is C. It is covering catchment of A plus C. So total catchment will be something like that. It will be like that somewhere, matching out that. Maybe some extra D part also. But at this location, the discharge will be of including of this area, this area, this area. So boundary will be a common, or if it is common boundary is not there, then individual water will also be a part of this area. So on this point, the catchment will be the whole of this area, whatever be from where the stream is coming, if it is coming like. So this is the, you will say a typical river system, you can see is like a tree system. So this is the, you will see in this picture, the river is flowing at the lowermost point. From highermost point, from hill it is coming. The water from rainwater, whatever coming from hill, this also be come here. This is also be come here. So this fact we have to be accepted while we are calculating those 5 properties. So my whole class is based on this calculation of the all these 5 properties. But before that, some of the basic fundamental principle we should know. Earlier picture I have shown, it is a hilly river. So here the velocity will be higher. But this is our river on the field, at the ground. So here the velocity is low, but the width will be increased. So discharge, for the same discharge, our the geometry according to velocity is changed. Here you will see one of the hill, 2 hills left and right side, and 2 water stream is coming. Or you can see this is the point, it is a ridge point of that. So here the water, whatever be coming from here in this side, it is coming to this location. For this river, this water is coming to this location. So all water which is coming to this river will be from this ridge to this side. And for here, it is coming from this side. So this water, whatever be coming, it is divided by this line. One line which is dividing our terrain for flowing of the water. Whatever water is flowing, someone will be come this side and that. So what is called this line? Anybody can tell the name of this line? Ridge. Pardon? Ridge line. Yeah. Very good. So this is called Ridge line. You can clearly see the person is going here. This is the ridge line of a hill state. Here this is the downward,
So the highest elevation of any area is called the ridge line. If we on Google Earth, if you will see the highest elevation and then elevation reducing. That point means it is a ridge line of that area. So this is the ridge line. Ridge line is a very much important role in calculating of the catchment area, because ridge line is the only dividing line, like our border, state border or our international border, like that. So this is the, you can say this is the Hindustan-Pakistan line. From where? From one side water cannot go to other side water. Any water which is rained here, can it will come to here? No. Is it possible? If any water rained to the other side of the ridge line, is it possible he can come to the this side? Not possible. Think and tell me, if any water drop has been thrown here, one water A and another water B has been dropped here, can they meet each other? Or can they replace their boundary? Lowest point they can meet. Yeah, very correct, very correct. They can meet lowest point from where the lowest point it is coming here, lowest point from coming here. Here they can meet, but at that point they can't meet. They have to be separated each other. Very good. So in other symbol, this photograph I think you might be seen yesterday also. So with the all ridge line, if we meet, so here you will see these are the blue lines, some blue lines. What are these lines? Catchment boundary. Catchment boundary is this line is a catchment boundary, which basically catchment boundary is nothing. It is a ridge lines, correct? And water will be coming, and this is the lowest point of one ridge line to another ridge line. That is called water stream. This is the water streams, whatever becoming water streams. And one water stream meets to another stream, then a big stream. So like it has been making a tree, as we have already discussed. So this is the tree of this location. If our bridge has this location, then tree will be coming like this direction. So but this stream water, this is the ridge line, this side for the any other ridge. Second thing, there is some more water, runoff water. You might be earlier taking consideration. Some ground runoff water and some of the ground flow water. So from this water going to the ground, the underground, and then coming in the form of the ground flow. That also added to the our water catchment area. So that factors already we have taken in that empirical formula, and those calculation which has been defined by the CWC reports. Okay, so what are the contours? Anybody? Lines of same altitude. Lines of Equal elevation. Same altitude. equal elevation. Very correct. Very correct. So if this is the, you will see this is the two hills. One elevation here, we will meet this line. We will meet these all lines like this. Okay. Here you will see the elevation line will be the same. Then this line will be meet here. So we will calculate here. In survey, we might be already calculating. So like these line. So ever you would know that ridge line or lowest line. अभी हमने पढ़ा रिज लाइन, दूसरा वाटर स्ट्रीम और थर्ड इज द कंटूर लाइन. So basically contour line is a perpendicular to these ridge line
and water stream. The lowest point is a water stream, highest point is a ridge line, and perpendicular to that line is known as contour line. So contour line is very much useful for our calculating of catchment area, because our topo sheets contour line. So in topo sheet, this is the principle we'll use, that contour line, ridge line and water stream is perpendicular to contour line. Here you will see every contour line we cross just perpendicularly we crossed. So at top level pe we will cross this is the ridge line. This will be a ridge line. And perpendicularly bottom level pe we are crossing, that will be water streams. So hope this is clear to you. One more picture, because when we will start doing exercise, then this understanding will be more clearly required for you. Here you are able to see in a geographical map, we are in 2D manner we are showing this red color, whatever you are showing, it is a ridge line. Correct? This is the ridge, total ridge line. So basically catchment area calculation is nothing. It is a plotting of ridge line, or it is a water stream. You see, this is the highest point is a ridge line, or lowest point is a Valley line. water line. Correct? Water streams, whatever your flow of water. So these, in between this defining of this line is the basically art of plotting the catchment area. One more thing I will tell, as I have told you in earlier slide, you might be thinking why I have told this line, it is, if it is a water stream, one more water stream, they will never meet to each other. They will not meet each other. So who will divide this to these persons? This ridge line. It is just like border. Correct? So if you want to draw the border, you see the person. This side person is going here. This side person is going here. It means this is the border. So basically, if we have the water streams and we want to plot the catchment area, so just draw a line in between the water stream, you will get the catchment area. Here, this graph is the same. Here, with the red color, you are able to see the water stream. Correct? And another, this water stream coming to this side, this water is coming to this side. You will be able to see. This is the water stream going this side. This water stream is coming this side. It means this is the border area. Here, no man lands, no water land. Means from this side, this water will not go this side, this water will not go this side. Means this area where the stream cutting to each other, that is called the catchment area line or ridge line. Is that clear? Because this principle will be very much important for us when we are calculating the practically. I will do exercise on our computer. We will do this exercise. Then this is the basic principle will come. Wherever the two streams are crossing, these streams are crossing, another streams are these crossings, these are the stream crossings. Then this line, whatever we will cross this line, this is our catchment line. This is the water line, this is the catchment line. This is the basic principle of plotting catchment area. So there are two basic principles. One basic principle is the dividing the area. Second is the making a line in between contour line at the perpendicular two type lines, which is the highest point or lowest point line. So in topo sheet method, the second principle is being used, and the method which is computerized method which I am going to teach you, this method will be work.
today we will teach this method or topo sheet method. I think yesterday you might be seeing a video how we will calculate these all 5 properties with the help of manual methods. देखा था आप लोगों ने? Yes, Manual sir. method. Yes, sir. Okay. So again I am coming with the same picture. कल भी आपको दिखाई गई होगी. ये 5 प्रॉपर्टीज दिखाया होगा. Number 1, catchment area A. This is the our contours you are seeing. All this is the perpendicular to the contours. This is the perpendicular line to the contours. Correct? This is the perpendicular line to these contours. You will be able to see. This is the. So this is become a ridge line also. Correct? And here you will see the whatever the lowest point of this, you will see in between. This is the lowest point. This is line is coming here from this line. This is the lowest line is coming and meeting as this is the junction, and then this is coming to our this bridge location. So what is this line? This is our water channel or water stream. Correct? So this is the body shape. Yellow color I am showing. So this shape is called area, catchment area in square kilometer. Second, the center of gravity of any area, which is we will calculate. This is the CG of this area. Nothing, it is a gravitational method of calculating. You will see if we drop 3 plumb bob freely with the height, where the 3 area will cross, that point will be called 3 lines will cross, that is called the CG of that catchment area. Then the stream, whatever the highest, because we know we need the velocity and many of the factors आपको बताए होंगे. For that factors we required the water is traveling from the longest stream from where. So we have to be calculate this. This is the highest stream from this area. It is coming. So this is the longest stream L. This calculation. CG we have calculated L, and then LC perpendicular nearby area of this area, and from here to this distance. Whatever be this distance from here to here, this distance is a LC. So we have calculated LC. So next is the slope. Slope means highest point इसका कहाँ होगा? ये highest. Suppose करो if the level of this area is 10 or this area is 40. So 30 level it has traveled from here. 40, 39, and some 38. Like that it will be coming here to up to the 10 area. So the level will be highest level to the lowest level will be come to the bridge. Bridge location will be the lowest level and highest level from where the water is coming, because the time of concentration will be calculated with the help of the highest stream only. So these 5 figures we will calculate on the field. Actually how we will calculate by not going the field with the help of calculator, computer I will show you. So you might be heard the name of Survey of India. Survey of India has been published our topo sheets. This is the site of Survey of India, soinakshe.uk.gov.in. Those who are already आप लोग कंस्ट्रक्शन में हैं, आप लोगों का एक सर्वे डिप्टी सी सर्वे SNC post might be there, and most of the topo sheets you have been collecting from this organization, from Survey of India, and will be available. Most of the railways are having their topo sheets. So this is the very old data and it being updated by the Survey of India. This is the shape of the topo sheet. Means it is a manually graphical method which has been surveyed in the field
and plotted on the paper and has been published, which is showing most of the data which are available, like a water stream. You might be seeing this blue color patches is the pond patches, and you might be seeing the green color is the forest area land. Here you will see also the contour lines also. So you mainly in the topo sheet catchment area where our contour lines are changing. So perpendicular to that we are goes for the plotting of the catchment area. That already with the form of video had been shown to you how to calculate the catchment area. ये आपको कल दिखाया होगा method. Some of the clip I am showing there that आपने देखा होगा कि they have first they have plotted on this topo sheet, and on topo sheet they have make a xerox and they have plotted with the help of contour and all this they are plotting the catchment area. Then they are measuring with the rope the longest stream L, they are measuring. Then for the CG they are hanging on the plumb bob and that they are calculating the CG. You will see there. Here they are hanging and they are calculating the CG. Then from CG perpendicular to the distance they are measuring. So this is the manual method already has been told to you yesterday. This is the manual method. Before the coming era of this computer like Google Earth, when it is came and our satellite has been now already established on the sky. So with the help of that now we can do all the imaginary effects and this science has been developed a lot. So here we will see, I will show you how we will calculate with the help of other method. So for here we calculate the area either by method of square method calculating with the this graph sheet, or this we have calculated with the planimeter. So this is the mechanical planimeter or electronic planimeters. So these are the old methods of calculating with the help of topo sheet, planimeter, or this method. Now we will come to the now present era, which I am going to taught you today, mainly using GIS technology for catchment properties assessment. Anybody can tell what is GIS? Geographical Information System. Geographical Information System. What is that? Anybody please highlight whatever you know. No problem for that. What is Geographical Information System? जी. Why we are switching this method? मैनुअल मेथड कल आप लोगों को बताया था, किसी को डाउट है, समझ में आया कि नहीं? Any concern about manual method? आप लोगों में से किसी ने मैनुअल मेथड से कैलकुलेट किया है? प्लीज बी इंटरेक्टिव विद द क्लास. नहीं तो मुझे लगता है मैं सिर्फ लैपटॉप में बैठा हूं या कंप्यूटर में सिर्फ बैठा. सर किया है सर, करीब 15 ईयर बैक इन कंस्ट्रक्शन भुवनेश्वर. वेरी गुड, करेक्ट. सो आपने क्या चैलेंजेस फील किए मैनुअल मेथड? सर बेसिकली प्रॉब्लम होता है उसमें, जो चैलेंज उसमें होता है आपको राइट जो है रेज पकड़ना और राइट उसका जो है राइट उसका जो है कंट्रोल पकड़ना उसका है, क्योंकि उसमें मल्टीपल इतनी उसमें फ्लो लाइंस रहती है सर, कोई महीन कोई पतली रहती है. मेन प्रॉब्लम वहीं आती है सर. एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस आई वांटेड टू लिसन फ्रॉम योर माउथ कि बिल्कुल सही है. ये एक अनुभव की है.
एक तो आपको वो धोती की तरह कम से कम 4-4, 5-5 टोपो शीट को मिलाना, उनको जेरोक्स करना, उनको फिर चिपकाना। पता पड़ा एक टेबल में तो आई नहीं, 3-4 टेबल में चिपका के बनाना पड़ता है, बराबर। और फिर आपको ये भी अंदाज नहीं आता है कि कहाँ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। कभी कंटूर कहीं का कहीं मिल जाता है, कई बार डाटा इतने छोटे होते हैं वो पढ़ने में नहीं आते हैं, और या फिर मेनी टाइप ऑफ मैनुअल मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। करेक्ट। मेन प्रॉब्लम आती है सर, ग्राफ से जब प्लॉटिंग करते हैं तो जो लाइनें पतली होती हैं तो मिक्स हो जाती हैं आपस में जाके। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सो बहुत ज्यादा हमारा डाटा जो है काफी रफली आता है, और कई बार अगर मिस्टेक हो गई तो आप सोच लीजिए क्या होगा। आपका ब्रिज बनाना था आपका 10 स्पेन का, और आपकी कैलकुलेशन कम आ गई, 5 स्पेन में ही आप निपट जाएंगे। राइट सर। सो दिस ऐसा हुआ है सर? हुआ है सर। I know. Many times because of this calculation mistake, I have many of the example of that. कि calculation mistake होने के कारण ये हमारा ब्रिज की प्लानिंग ही गलत हो जाती है। So these are the limitation of manual method. क्या extracting, आपने सही बोला, वही बोल रहा है, extracting topographic features from topo sheet is very cumbersome task, especially when large size catchments are involved of the bridge location. It is not at the mouth of the river basin catchment. Correct. And defining, quantifying of channel is very difficult, impossible. Many times it is very difficult. जो आपने जो अपना अनुभव बताया, that is very correct. Calculation of area, centroid, channel stream, length is a very cumbersome and not very accurate. आपको मालूम है पूरा एरिया को काटना, लटकाना, प्लम से चिपकाना, फिर पता चला वो बीच में सेंटर आ ही नहीं रहा। सर एक ब्रिज में प्रॉब्लम ये हुआ था, जो हमने कंटूर बनाए थे सर, तो ब्रिज बनने के बाद वहां से स्ट्रीम आता नहीं था। करेक्ट। छोटा ब्रिज था। यू आर वेरी राइट। क्या होता है, ये जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया ब्रिटिश टाइम में हुआ था, और अपडेटिंग 100% नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे हैबिटेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कई जगह चेंज हो गया, और हमने पुरानी अगर लेके हमने किया तो हो सकता है उसमें उतना चेंजेस नहीं आया। सो हमें प्रेजेंट डाटा कई बार लेने के लिए हमें एक तो उसको अपडेट करना पड़ता है, और वेदर इट इज लेटेस्टली अपडेटेड और नॉट, दैट इज आल्सो वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज दे आर आल्सो डूइंग द मैनुअली देन अपडेटिंग टू दिस शीट्स। तो वो शीट्स अपडेटेड है कि नहीं है, दैट इज आल्सो बिग। दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दैट प्रॉब्लम। तो हो सकता है उसके बाद में कहीं आर्ट फिलिंग हो गई हो, वाटर स्ट्रीम लेफ्ट की जगह किसी दूसरे में मिल गई हो। अगर हमने बीच में कोई रोड बना दिया या बैंक बना दिया तो दैट इज पॉसिबल कि वो किसी दूसरे नाले में पानी जाता हो। सर ये प्रॉब्लम आती है माइनिंग एरिया के अंदर में। बिल्कुल। जहाँ माइनिंग है, आपका कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अर्बन में हम कई बार ऊपर से नीचे कर देते हैं। रिक्वायर्स ए वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। It requires experience. Visual representation of feature is not available. So this is the limitations of manual method. Now that GIS method, which I will be discussing you, that is a very useful and very important and काफी accurate and easy and fast. So we will discuss in detail. I think we should take 5-minute break. और you need continue सर। एनी अदर? 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक कर लेते हैं। Yes, break. ओके, देन वी विल डिस्कस ए न्यू लाइन, है ना। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड द ओल्ड मेथड एंड नाउ वी विल इन डिटेल, बिकॉज जीआईएस मेथड समझाने के पहले मुझे आपको कुछ उसकी बेसिक प्रिंसिपल बताने पड़ेंगे, बेसिक थ्योरीज बतानी पड़ेगी, है ना। तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ इसको आप एक बार देखिए क्या है, देन आई विल 5 मिनट के बाद यही लगा रहेगा एंड वी विल मीट। नाउ इट इज 5:70, अराउंड 2022 वी विल मीट। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? सब लोग आ गए तो स्टार्ट करूं? Yes, sir. So geographical data has been divided. I am showing it in this chart form. It as a geographical data can be divided spatial and non-spatial. What is spatial?
First, I will say you the non-spatial means the descriptively. If we want to represent anything, किसी form में in if we will write any form in letter form or tabular form or in Boolean form, then it is called spatial. A non-spatial. Spatial means any in two dimension representation or any representation of three dimension in a form of two dimension. That all data will called as a spatial data. And if we will show the data in a narrative form, like descriptive form, that is called non-spatial data. It will be more clear to non-spatial data, like descriptive means tabular form. Whatever data we are giving, our details in table, Excel files, etc. These all are non-spatial data. Or some of our booleans, etc. we are giving, that is all are the non-spatial data. Spatial data are those data which are the 2D or 3D representation of the or 3D representation in the form of 2D. On the data it is showing on the 2D format. This is also can be divided in two formats. One is the vector and another is the raster. Anybody can tell what is the vector and what are raster? आपको बहुत अच्छा है. Sir, in terms of physics, we will read in physics vector, the unit having the direction and quantity. Okay, very good. And raster? Raster no more clear, so we cannot. No problem. In case here the vector raster is some little bit meaning is coming the same, but there is a in geographical and terminology. वेक्टर एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, शायद आपको क्लियर हो जाएगा. आप कभी भी स्कैन किया है आपने पेपर को स्कैन करते हैं, या तो आज की डेट में मोबाइल में भी कैम स्कैनर या फिर हमारा जो बहुत सारे स्कैनर सॉफ्टवेयर है और उससे फोटो लेने के बाद, और या फिर हम जब कंप्यूटर या प्रिंटर पे भी अपना स्कैन करते हैं तो ऑप्शन पूछता है यू वांट टू सेव इन पीडीएफ फॉर्मेट और इन in the form of JPG. Correct? Yes. So here you will see JPG file is nothing, it is a raster file. Correct? Yes. And PDF file is nothing as a vector file. अब आप सोच लीजिए JPG फाइल और PDF फाइल में क्या फर्क है. आपने एक बार PDF फाइल को आप दोबारा उसी वर्ड में उसमें करेक्शन एडिंग वगैरह कर सकते हैं. बट अगर जेपीजी फाइल है तो उसको रीटाइप करना मुश्किल है. सेम वे, या फिर जो हम फोटोग्राफ लेते हैं, अपनी पिक्चर ली, वट एवर पिक्चर वी हैव टेकन, तो वो कैसे लेती है पिक्चर. बेसिकली होता क्या है कि आपने देखा होगा ना, आपका मोबाइल का कैमरा इतने मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 64 megapixel. What is that? It means that area has been divided in a form of dots. Resolution qualities. Yes. इन dots का total आपका area निकाल दिया. In length में dots और and आपका x direction में dots और y direction में dots. और उन total dots का number is the megapixel. So that dots की property होती है. हर dot की एक property होती है. और उस डॉट को बोलते हैं पिक्सल, और उस पिक्सल की एक प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करते हैं. अगर इन 64 मेगापिक्सल है, मतलब उसके पिक्सल्स जो है या डॉट्स हैं 64 मेगा, इतने पिक्सल्स नंबर्स में है, और हर पिक्सल की अलग अलग प्रॉपर्टी है. कोई रेड कलर बता रहा है जो उसने सिलेक्ट किया, कोई ब्लू कलर है, कोई ग्रीन कलर है, तो जो उसने पिकअप किया और वही वो पिक्सल कलर छोड़ देगा, तो आपको चेहरा बन जाएगा. दैट इज द मेथड ऑफ प्रिंटिंग ऑफ ए फोटोग्राफ. सो दिस इज द बेसिकली इट इज ए रास्टर डाटा, रास्टर मेथड ऑफ डिफाइनिंग इमेज और पिक्सल, दैट इज द रास्टर. इज दैट क्लियर? Clear, sir. फर्दर इट इज ए वेक्टर. Vector is can be divided in 3 parts.
पॉइंट, लाइन और शेप। तो ये हमारा कंप्यूटर जो है उस चीज को या तो पॉइंट को एक शेप में पढ़ लेगा, उसका एक कोड बना लेगा, या एक लाइन है, दिस इज द लाइन, इसका एक कोड बना लिया, या ऐसी कोई लाइन है, इसका एक कोड बना लिया। शेप, वट एवर भी शेप, एनी शेप जो भी है उसका भी एक कोड बना लिया। सपोज करो ये कोई शेप है, इसका एक कोड बना लिया। सो दैट कोड इज ऑफ दैट शेप, उसको बार बार, जैसे कि मैंने बताया आपको पीडीएफ फाइल, सो पीडीएफ फाइल में वो अपनी कोडिंग में वो उस पूरे मैटर को बना के सेम वे में ड्रॉ कर देता है। तो बेसिकली हम जो भी लिखते हैं वो हर लेटर का एक कोडिंग रहती है उसकी, उस शेप में वो पीडीएफ में कन्वर्ट करता है। So these all details, whatever be coming to the end of coding of the point, line or shape is called the vector, and defining through the pixel is called the raster. Clear? Yes. और भी ज्यादा आगे के एग्जाम्पल से यहाँ यूज करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए GIS, जो मैंने बोला था, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। How this is the system designed to capture, analyze, store, manipulate, present and manage all type of geographical data. ठीक है, तो these all exercise is called geographical information system, GIS. How this is coming? अब आप यहां देखिए, सपोज करो इट इज डिवाइडेड इन मेनी ऑफ द फील्ड लाइक पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। ये पहली वाली आप जो देख रहे हैं ये हमारी बाउंड्रीज है, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, कंट्री वट एवर बी। तो ये क्या है, ये इस शेप को डिफाइन कर दिया, दिस इज ए वेक्टर, करेक्ट। स्ट्रीट, रोड की जो शेप से हमारी है, लाइन है, इन सब का एक हमने शेप बना लिया। सो दिस स्क्रीन इज आल्सो स्ट्रीट आल्सो वेक्टर। लाइक पार्सल्स, हमारा डिफरेंट पॉकेट्स हैं जो हमारा अलग अलग है, डिफाइंड कोई भी चीज क्या है, वाटर बॉडीज या हमारा अर्बनाइजेशन वट एवर भी जो भी है, तो या फिर हमारे यूजेस के हिसाब से, या हमारा पॉपुलेशन, या वट एवर वी वांट टू डू, दैट पार्सल्स वी हैव कैन बी डिफाइंड इन ए वेक्टर शेप। रास्टर, आई विल शो यू द लैंड यूजेस, है ना। तो ये लैंड हमारा वाटर सिस्टम में यूज हो रहा है, ये हमारा सिटीज के लिए यूज होगा, ये हमारा ग्रीन कलर का हमारा फॉरेस्टिंग वगैरह का है। तो ये जो हर डॉट का हर आपने देखा होगा जितने भी आपके रास्टर इमेजेस है वो हमारे पिक्सल में डिवाइडेड है। देखिए आप हर खाने में डिवाइडेड है, तो हर खाने में उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसकी वैल्यू दी उसने। ग्रीन कलर का मतलब फॉरेस्ट एरिया, ब्लू कलर मतलब वाटर एरिया। तो दीज ऑल आर पिक्सल इज अ गिविंग, तो उस एरिया को ये दे दिया। एलिवेशन, इसकी हाइट के हिसाब से अप टू 200 की एलिवेशन अलग, 300 का एलिवेशन अलग, 400 का एलिवेशन अलग। उस एलिवेशन का अलग अलग कलर के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे, दैट आल्सो कम टू द रास्टर। जब ये सारी लेयर ऑल 1 2 3 4 5 6, अगर हम ये सभी लेयरों को जब मिला देते हैं, देन ए रियल वर्ल्ड पिक्चर आपको दिखती है। तो आप जब भी कभी गूगल इमेज या गूगल मैप को देखते होंगे, या फिर आप गूगल अर्थ में देखते होंगे, अभी सभी के पास स्मार्टफोन है, गूगल मैप का मैक्सिमम हम यूज करते हैं सभी लोग अपने उसके लिए। इवन सैटेलाइट इमेजनरी भी दिखाता है, तो उसमें हमें रियल वर्ल्ड दिखाई दे जाता है, रोड दिखाई दे जाती है। सो वट एवर, नथिंग, इट इज ए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS सिस्टम। वी आर जस्ट कैप्चरिंग दो सिस्टम। सो दिस इज डिटेल अबाउट द GIS। एनी डाउट? No, sir. Clear, sir. Okay. One more, like our groundwater flow of modeling of GIS में करना है मुझे, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ हमारा ग्राफ। सो देखिए एक ही ग्राफ में ये है, लैंड कवर में हमने दिखाया, उसमें लैंड फॉर्म दिखा दिया, क्लाइमेट दिखा दिया, हाइड्रोलॉजिकल ग्राफ दिखा दिया एंड बोरऑल दिखा दिए। जो सारे मिलने के बाद ये लैंड फॉर्म में इस टाइप से बनता है। तो दीज आर मेनी टाइप ऑफ यू कैन शो। अभी मैं आपको भुवन साइट पे जब दिखाऊंगा, देन यू विल बी सरप्राइज कि GIS कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। तो नाउ आई हैव टेकन द नेम ऑफ भुवन एंड भुवन हैज बीन केम। आप लोगों ने भुवन के बारे में क्या जानते हैं, कोई थोड़ा बताएगा? एनीबॉडी?
भुवन वो एक हीरो था जो लगान में काम करता था. Yes, sir. No, I am not talking about that Bhuvan. This is I am a talking a software which is developed by ISRO. ISRO. Yeah. Anybody can highlight about this Bhuvan? आज की हमारा पूरा डिटेल इस पे डिपेंडेंट है. इसके बारे में मैं काफी डिटेल आपको बताऊंगा. किसी ने यूज किया है भुवन को? यूज तो नहीं किया सर, लेकिन सुना जरूर है. Okay. What is Bhuvan? Bhuvan is a GIS platform developed by ISRO, providing topographical and hydrological information duly updated based on satellite imagery. आपको पता होगा 4-5 हमारे खुद के सैटेलाइट्स हैं जो सिर्फ इसीलिए हमेशा चलते रहते हैं और इमेज हमें भेजते रहते हैं, जो कि पूरा हमारा इसरो के कंट्रोल में है. और इसरो उसके लिए इस वेबसाइट पे हमारे इतनी ज्यादा डाटा इतनी यूजफुल है. इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे ने इनके साथ में MOU भी किया हुआ है इसरो के साथ में. एंड वी आर शेयरिंग अवर मेनी ऑफ द डाटा. और इनके प्लेटफॉर्म पे GIS प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारे डाटा को क्लब करने के बाद में अपने हम यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ऑलरेडी हमारे इंडियन रेलवे और इसरो का MOU भी है इस कंसर्न में. तो आई विल टेल यू, आपने देख रहे होगा भुवन 2D, भुवन 3D, है ना. और फिर इसके बाद में बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे आप. भुवन 2D, भुवन 3D, ओपन डाटा आर्काइव, क्लाइमेट, ओशन सर्विस, है ना. क्रिएट मैप, आप अपना खुद का मैप, जैसे यही है हमारा रेलवे में, लोग इसी को यूज करते हैं कई बार, है ना. थीमेटिक सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री. अभी आपको खोल के दिखाऊंगा साइट पे, तो आपको पता चलेगा कि इट हैज ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. और जो आज की एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो भी इसी पे ही करेंगे. इस पे करने के बाद जैसे आपको बताया, ये आपका एक शेप आ जाएगा. ये पूरी इंडिया का इन्होंने हाइड्रोलॉजिकल मैप बना के दिया है. एक एक चैनल, एक एक छोटी छोटी नालियां भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, छोटी छोटी. आपको मैं एक्चुअल में सर्व करके बताऊंगा, देन यू विल सरप्राइज कि सब सारी चैनल. आपने बताएगा टोपो शीट वाज बेस्ड ऑन हमारा उसका मेन डाटा क्या था, कंटूर्स. यहां पे भुवन में हमारा मेन डाटा है हाइड्रोलॉजिकल चैनल. जो ब्लू कलर की चैनल दिख रही है ना, ये बड़ी बड़ी डार्क में दिख रही है, रिवर दिख रही है. जो डार्क में दिख रही है वो सब रिवर है ना. और जो लाइट में दिख रही है स्ट्रीम, वो सब छोटी छोटी स्ट्रीम है. ये सब ये दिख रही है, सब रिवर है, ये है ना. तो ये इस पे हम डिटेल काम करेंगे, एक एक इसके टूल्स को हम यूज करेंगे डिटेल में, और मैं आपको बताऊंगा. तो देखिए, इस मेथड से बनाने के बाद इस टाइप से कैचमेंट निकल आता है. आपने देखा होगा. अभी ये एक्सरसाइज हम खुद करेंगे. कैचमेंट दिख रहा है ना, ग्रीन कलर की लाइट, है ना. यहाँ आपको दिख रहे हैं वाटर स्ट्रीम. दोनों वाटर स्ट्रीम अलग है, मैच तो नहीं कर रहे हैं दूसरे के, बाउंड्री अलग अलग दिख रही है. बिल्कुल, है ना. देखिए ये बाउंड्री दिख रही है, सभी वाटर स्ट्रीम अलग अलग है. और ये हमारा ब्रिज साइड दिख रही है, यहाँ दिख रहा होगा आपको ब्रिज साइड, है ना. सो इस टाइप से हम वी कैन यूज ये. सो ये आपकी वाटर चैनल है. ये हमारा बन के भुवन पे आ जाएगा. दैट एक्सरसाइज आई विल डू विथ यू. सो टूल्स फॉर एवेल्यूएशन ऑफ कैचमेंट प्रॉपर्टीज. तो हम कैचमेंट प्रॉपर्टी को एवेल्यूएट करने के लिए 3 मेथड हैं. पहला मैनुअल मेथड, ऑलरेडी कल आपने वीडियो देखा और हमने डिस्कस किया. उसमें हमें क्या क्या चीज लगती थी, टोपो शीट, प्लेनीमीटर, ग्राफ पेपर, कार्डबोर्ड, प्लम बोर्ड और थ्रेड, नापने के लिए थ्रेड और स्केल वगैरह, और बाकी टूल्स, मैनुअल टूल्स लगते थे. एक मेथड और है जिसे एडवांस मेथड यहां कहा गया है. एडवांस मेथड बेसिकली आपको बता दूं, जो GIS सिस्टम है बेसिकली इट इज ए वेरी बिग साइंस. आज की डेट में बहुत सारे अधिकतर IITs में there is a classes in master MTech level which is called remote sensing. आप लोगों ने सुना होगा remote sensing. तो वहां पे आपकी GIS प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करना सिखाया जाता है.
तो 2 साल का कोर्स वगैरह होता है और इसके बारे में काफी डिटेल कोर्स वगैरह बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो उसके हिसाब से ये उनके सॉफ्टवेयर हैं, एक QGIS सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी काफी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इट इज ए वेरी कम्बर्सन एंड वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा ये है। इसको सीखने के लिए भी आपको काफी टाइम चाहिए, अच्छे से सीखने के लिए, मतलब फुल डिजाइन एक्सपर्टाइजेशन आपको चाहिए इसमें QGIS को। सेकेंड, ArcGIS भी यूज होता है इसमें। बेसिकली दीज आर द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर। ArcGIS ए पेड सॉफ्टवेयर जो कि US गवर्नमेंट, ये दोनों US गवर्नमेंट के हैं। तो दिस ऑल ArcGIS ए पेड सॉफ्टवेयर, दिस इज द फ्री सॉफ्टवेयर, बट बहुत आगे जाने के बाद कई जगह रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, देन यू हैव टू बी पे फॉर देम आल्सो। बट इसको यूज करने के लिए आपको गूगल अर्थ की जरूरत तो पड़ती है, भुवन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो आपको टाइल्स है, डाटा है, वो आपको भुवन ही देगा, ठीक है। फिर आपको जो ये जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट है, एक सॉफ्टवेयर में दूसरे होते हैं, दूसरे में उन कोऑर्डिनेट को चेंज करने के लिए GeoTUTM, AWS वगैरह के कई पैकेजेस वगैरह को यूज करना पड़ता है। देन स्पेशियल रेफरेंस में EPSG कोड को यूज करते हैं, एंड देन प्रोसेस करने के बाद में एक्सेल फाइल को यूज करते हैं। दिस इज द एडवांस मेथड। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी काफी आपको थोड़ा सा हाई जा रही होगी। एक मैं आपको जस्ट एक टेलर दिखाता हूं इस मेथड का। इसके बाद में एक मेथड ये है जो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, जिसका नाम बोला है हमने सिंप्लीफाइड मेथड। सिंप्लीफाइड मेथड में हमारे पास जो टूल्स लगे हैं, 3 टूल्स लगते हैं, गूगल अर्थ, भुवन और एक्सेल। आई थिंक भुवन शायद हो सकता है आप पहली बार यूज करेंगे, बता दूंगा। एक्सेल मेरे ख्याल से कोई नहीं बोलेगा कि सब मैं एक्सेल नहीं देखा मैंने सॉफ्टवेयर, सभी लोग जानते होंगे एक्सेल को, करेक्ट है? कोई ऐसा कि जिसने एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया हो? आई थिंक नो, है ना? अच्छा, गूगल अर्थ को कितने लोगों ने यूज किया है? गूगल अर्थ को खोल के देखा कभी? रेगुलर देखते हैं सर। यस सर, रेगुलर देखते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिकली जो आप गूगल मैप जो यूज करते हैं, नथिंग, इट इज ए एडवांस वर्जन ऑफ द, और या ये गूगल अर्थ इज एडवांस वर्जन ऑफ गूगल मैप। यस सर, करेक्ट। सो दीज आर द कॉमन सॉफ्टवेयर जो कि हम सभी यूज करते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो यहाँ दिखाए हैं एडवांस में, वो आप लोगों ने पहली बार नाम सुने होंगे, बराबर? क्या ये भी आप लोगों ने यूज किया है QGIS? एनीवन? नो सर। ओके, तो जस्ट कंफ्यूज मत होना, मैं डिटेल में तो आपको सिंप्लीफाइड ही बताऊंगा, बट दूसरी पिक्चर का टेलर दिखा देता हूं इसका एक बार, तो थोड़ा सा आपको अंदाज आए कि जो आपकी कंसल्टेंट जो करके लाते हैं ना, अगर हाई क्वालिटी का कंसल्टेंट है जो बढ़िया है, जो कि आपने अगर किसी को दिया, तो जो QGIS और ArcGIS से कैसे करता है, उसका मैं आपको 1-2 मिनट का एक टेलर टाइप आपको PPT में दिखाता हूँ, ठीक है? एक सेकंड। दिस इज द एडवांस मेथड, एडवांस टेक्निक फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ कैचमेंट प्रॉपर्टीज। ये आपका भुवन 2D मैप में जब हमने लोकेशन, यही एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा, ये लोकेशन को इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने इस लोकेशन को जो ये यहाँ पे ये ब्रिज के लिए कैचमेंट निकालना, इसके सारी प्रॉपर्टीज निकाले, इसके आपके कोऑर्डिनेट लिए, कोऑर्डिनेट को लेने के बाद में उस कोऑर्डिनेट को इनके कोऑर्डिनेट के साथ में किया। देन इसका भुवन में ये आर्काइव में कई डाटा सेव हैं जो कि पूरा फुल डिटेल एज ए टाइल्स करके देता है, जिसमें बहुत सारे डाटाज हैं एक साथ। तो इन्होंने कार्टोसेट करके से डाउनलोड करते हैं, कार्टोसेट DM वर्जन 3 R1, और वो ये कोऑर्डिनेट इसका पूरा टाइल्स, जैसे अपना टोपो शीट होता है ना, इतने डिग्री से इतने डिग्री तक, तो वो डाटा ये ट्रांसफर करके दे देता है। तो हम DM डाटा जो है इनको बोलते हैं, वो डाटा हम फ्रॉम भुवन से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट ये डाटा भुवन हमें देने के लिए अब मैं पूरा अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसको रजिस्टर्ड करने के बाद में पूरा अपने आइडेंटिटी वगैरह देने के बाद में, ID पासवर्ड देने के बाद में ही ये इसके अंदर अलाउ करेगा।
बट जो मैं सिंप्लीफाइड मेथड दे रहा हूं वहां का काम करने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और ये काफी हैवी डाटा है, थोड़ा सा इनको डाउनलोड करने में भी काफी टाइम लगता है। तो पहले वहां से डाउनलोड किया आपने भुवन, तो मतलब डाटा अल्टीमेटली भुवन ही देता है चाहे जिस मेथड में यूज करें। देन QGIS सॉफ्टवेयर में इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं इस डाटा को। दिस इज द इंटरफेस ऑफ QGIS सॉफ्टवेयर। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, उसमें फिर इस डाटा को एक्सपोर्ट करने के बाद में इस सॉफ्टवेयर के अंदर जब ये डाटा खुलता है तो ये इस शेप में होता है, DAM है ना। तो DAM लोडेड इन QGIS, देन DAM mosaic layer, there are a lot of exercise of that DAM mosaic layer in QGIS, so you have to be practice of that making mosaic layer. Then DAM को reprojected layer in QGIS, these are their terminology. DAM subset layer in QGIS, then DAM make DAM field layer in QGIS, then make styled DAM field layer in QGIS, basically refining of your different layers to layers. Then stellar order, defining of the stellar order in QGIS, then stellar order number 6, because that then only you can able to read and define. Lower than that are not for our useful data, so we will take stellar 6 layer of that, then styling of that layer with the flow direction of the layer in QGIS, then style channel layer in the QGIS exercise, and then style drainage basin layer in QGIS. So these are सारे exercise में आपको अंदर करके प्लॉट कर करके हर लेवल पे आपको एक के बाद सीक्वेंस में आपको जाना पड़ता है. Then outflow point mark in QGIS, then we will able to get the catchment area vector layer in QGIS. तो ये सब इतनी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी. सो आपको उस सॉफ्टवेयर का ये सब डिटेल आपको पहले सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आप इस टाइप का एक कैचमेंट, ये आपको शेप दिख रहा है ना, ये शेप आपका बन के आ जाएगा. बट यही शेप, यही एक्सरसाइज मैं आपको सिंप्लीफाइड मेथड करके मैनुअली करके बता दूंगा कंप्यूटर पे. देन देखिए ना, यही शेप आएगा. ये देखिए, देन क्लिप्ड चैनल, इसके अंदर की चैनल की क्लिप्ड चैनल, स्ट्रीम चैनल इन QGIS, देन क्लिप्ड स्टाइल DM लेयर इन QGIS, then catchment area shown in QGIS, then centroid of the catchment area, then longest stream final in QGIS, then L length in QGIS, then marking of the point nearest to the centroid of the longest stream, then LC stream in QGIS, then LC length in QGIS, then longest length of elevation profile in QGIS. ये प्रोफाइल देने के बाद में इसके लेवल को उठा के फिर हमें एक्सेल शीट पे हमें ट्रांसफर करना हमें पड़ेगा. ये हमें लेवल दिखा रहा है कि हमारा सबसे ऊपर से लेके नीचे तक हमारा ये ब्रिज साइट है, ये लेवल आ गया नीचे का, और ये हमारा ऊपर का है. सो ये सारा लेवल करके ये दिखाएगा. देन ये इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है, इतने इतने स्टेप्स चल रहे हैं. तो उसके बाद में फिर आपको एक्सेल में डालने के बाद ये डाटा को एक्स और बेड करने के बाद एक्सेल में डालना पड़ेगा. सो दिस इज ए टेलर ऑफ एडवांस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग. आया कुछ समझ में अजय जी? सर यस सर. सर करेक्ट. जस्ट मैंने इसलिए आपको 2 मिनट में पूरा टेलर दिखा दिया कि बेसिकली जो एडवांस वर्जन जो यूज करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं इसके, वो ये काम करते हैं. लेकिन अल्टीमेटली हमें वो 5 प्रॉपर्टी चाहिए. मेरा एम यही है, ठीक है. तो उस 5 प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करके हम एक्सरसाइज करके करेंगे, वो मैं इस सिंप्लीफाइड मेथड्स में आपको बताता हूँ. ठीक. यस. सो सिंप्लीफाइड मेथड में हमें सबसे पहले 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने होते हैं. एक गूगल अर्थ, दूसरा भुवन nrsc.gov.in. ठीक है. तो मैं पहले सबसे पहले ये दोनों सॉफ्टवेयर को ही आपको पहले दिखाता हूँ.
दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसमें छोटा सा एक करेक्शन करना है, गूगल अर्थ पे ऑप्शन में जाके इसकी यूनिट को मीटर किलोमीटर में करना है और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हमें डेसिमल डिग्री में करना है, और लेयर जो इसकी है उसका टेरिन को ऑन करना है। क्यों करना है मैं आपको एक्चुअल में साइट पे जाके, तो मैंने पीपीटी में आपको बताया था कि हमें सबसे पहले टूल्स में जाके ऑप्शन में जाना है एंड देन मेजरमेंट को टूल्स में, ये आपको टूल्स दिख रहा है, टूल्स में जाके ऑप्शन में जाने के बाद आप देखेंगे शो लेट लॉन्ग, तो ये डेसिमल डिग्री में, कई बार ये हमारा इसमें रहता है डिग्री मिनट सेकंड में, है ना। डिग्री मिनट सेकंड मींस एक डिग्री आपका 60 मिनट का और एक मिनट 60 सेकंड का, तो उसको हमें डेसिमल में चेंज कर लेंगे पॉइंट में, तो हमारा कैलकुलेशन करना ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, एक ये कर लिया। दूसरा हमारा इसमें स्केल जो है ये वाला यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर और किलोमीटर में, ये मोस्टली कई बार अधिकतर जब आप पहली बार करेंगे इंस्टॉल तो फीट और माइल्स में मिलेगा आपको, है ना, या सिस्टम डिफॉल्ट में रहेगा, तो ये दोनों हटा के आप मीटर और किलोमीटर में कर लीजिए और इसको अप्लाई पे दबा दीजिए। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद में आप यहां देखिए लेयर्स, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है लेयर, एरो दिख रहा है, लेयर्स देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। उस लेयर में सबसे नीचे देख रहा होगा टेरिन। ठीक है, टेरिन को ऑन करना जरूरी है, टेरिन हमेशा ऑफ रहता है। अगर टेरिन आपका ऑन नहीं है, ऑफ है, तो क्या होगा, जो आपको जो एलिवेशन दिख रहा है ना, ये देखिए मैं किसी भी लोकेशन पे जब घुमाता हूं तो ये देखिए एलिवेशन चेंज हो रहा है, नीचे दिख रहा है, नीचे ये जगह पे ये यहाँ पे दिख रहा है एलिवेशन, ELEV और मीटर दिख रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एलिवेशन देन एलिवेशन आइज, है ना। तो जो एलिवेशन है ये टेरिन को ऑन करने पे ही आपको मिलेगा। सपोज करो मैं कोई भी लोकेशन को बड़ा, ये कोई रिजर्वायर है, इस पे देखिए, इस पे पानी के ऊपर एलिवेशन मेरा पूरा 462 का एलिवेशन दिखा रहा है। जैसे ही मैं ग्राउंड पे जाऊंगा एलिवेशन बढ़ता जाएगा, दिख रहा है, बढ़ रहा, 500 तक जा रहा है, और नीचे आया, ये रिवर चैनल कोई भी दिख रही है, इसके हम जाते हैं। तो हमारा एलिवेशन हमें जरूरत पड़ेगी कंटूर वगैरह देखने में। जो पहले कई बार लोग गूगल अर्थ से भी कंटूरिंग वगैरह करते थे, वो इस एलिवेशन के थ्रू करते थे, है ना। बट भुवन के आने के बाद अब हमें कंटूरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो गूगल अर्थ को बस इतनी जरूरत है। आगे हम बहुत सारे जो स्लोप है और एक्सरसाइज वगैरह जो टूल्स को, एनालाइजिंग टूल्स में गूगल अर्थ में बहुत अच्छा है, और वी कैन यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा चार्जेस नॉट टेकिंग बाय। दूसरा, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके या कोई भी हम ब्राउजर पे जाके, वहां पे हम जाने के बाद भुवन बस ओनली लिखा और कुछ जरूरत नहीं है आपका। ये तो क्या पूछने लगा, आई एम नॉट रोबोट। सो ये भुवन की आपके भाई कई प्रकार की साइटें दिख रही हैं गूगल पे, तो ये भुवन NRSC वाली साइट है, इसी को आपको खोल दीजिए। तो अभी कुछ इंटरफेस भी इन्होंने चेंज किया है, तो ये भुवन NRSC होम, तो इसके होम पे जाने के बाद भुवन 2D को मैं खोलता हूँ। अभी रिसेंटली इन्होंने थोड़ा इंटरफेस को चेंज किया है, तो ये भुवन 2D में ये हमारा मैप करके दिखाई देता है। तो ये हमें 2D में जाके काम करना है। पहले थोड़ा सा मैं भुवन के बारे में भी और आप बता दो आपको। ये देखिए भुवन इंडियन नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट्स NRSC, है ना। ये बेसिकली इसरो के द्वारा NRSC मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो, ठीक है। इसमें देखिए आपकी ई-गवर्नेंस, टूरिज्म, अर्बन, रूरल, थेमेटिक सर्विस and then ocean service, disaster management, create map, central ministry, e-governance, है ना। यहाँ कितने कोविड का डाटा वगैरह सब इस पे डला रहे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, कितना लोगों को क्या हुआ, बहुत सारी चीज। आप इसके अंदर जाएंगे ना तो आपको पूरा मैप के साथ में डाटा मिलेगा,
किस डिस्ट्रिक्ट में, किस एरिया में क्या क्या है, मनरेगा स्कीम एंड जितने भी मतलब जिलों में स्कीम चल रही है उन सबके भी डाटा अपडेटिंग वगैरह इसमें काफी कुछ अच्छे से किया जाता है. So this is a very good platform which is giving by the geographical data. उनके साथ में क्लब किया है. But anyhow हम इसमें इसे यूज करने वाले हैं for the calculating our catchment properties. उसके लिए we will go to भुवन 2D में हमारा काम कर जाएगा, है ना. ये बेसिकली हमारा इसके पूरा वर्ल्ड है, एक पूरा समुद्र में से एक बूंद हम ले रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं. इस मेथड को जो हम यूज कर रहे हैं इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. लेकिन आप अगर जब आप DIM या टाइल्स वगैरह इनकी लेना, एक्वायर वगैरह करना है, तब आपको इसमें लॉगिन वगैरह करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा. आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह डाटा दे के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. बट यहाँ के यूज के लिए हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. इसके बाद में इसमें मैप है, सैटेलाइट है, हाइब्रिड है, टेरिन है, मूवर है. अब बेसिकली हमारे मैप में दो प्रकार के मैप है. बेस एडमिन मतलब ज्योग्राफिकल डिटेल्स, आपका रोड, मेनली रोड और स्टेट और उसकी बाउंड्रीज. हमारी जरूरत है बेस हाइड्रोलॉजी. आई विल क्लिक. उसके साथ ही आप देखिए पूरा ब्लू कलर अपना आ गया. सारा रिवर्स चैनल, बड़ा सारी चैनल, डिटेल चैनल, डीप चैनल, है ना. पूरा हर चैनल के अंदर की छोटी चैनल, अगला लेयर और उससे छोटा आ गया. देखिए बड़े लेयर के बाद फिर छोटा लेयर आ गया. एकदम जूम करके आप जितना भी छोटा जाएंगे और आप उसका डिटेल पाते जाएंगे. तो जितना आपको छोटी से छोटी जगह का भी आपका डाटा, और जो आपने बताया था ना कि जो कंफ्यूजन हो जाता था सर वो नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. यहाँ पे हर एरिया के आपका आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालिए लेफ्ट हैंड साइड में, आपको पूरा डाटा. या देखिए ये सिटी का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने डाला, आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालते ही साथ आपकी लोकेशन पे आ जाएगा और उस ब्रिज की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल के आप उसका देख सकते हैं. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी लोकेशन को हम कैसे निकालते हैं? एनीबडी? आप अपने ऑफिस में जहां बैठे हैं, आप अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है बताइए, कोई बता सकता है? एनी गैस? मैं आज आपको सिखाता हूं, आप अपने मोबाइल से आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 2 मिनट में निकाल लेंगे कि आप कहां बैठे हैं, या फिर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिर्फ उस लोकेशन को आप सर्फ करके निकाल सकते हैं. बता सकते हैं कैसे? वो तो इसमें सर कर्सर जहाँ पे ले जाएंगे सर वहाँ पे भी, जैसे इधर लिखा हुआ है 77.50, तो दिस इज 77.50 नॉर्थ, 15.66 डिग्री साउथ ईस्ट. किसमें? अभी जैसे भुवन में खोला हुआ है सर 77.5. भुवन में नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हैं सर. नहीं, भुवन में आपको वो जगह ढूंढना मुश्किल पड़ेगा कई बार, एक्चुअल ब्रिज साइड पे जाना, क्योंकि आपको वाटर चैनल दिख रही है, आपको बाकी चीजें डाटा नहीं दिख रहे हैं. तो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप डायरेक्टली उस एरिया को अटैक कर सकते हो, है ना, और एकदम एग्जैक्टली आप वहां जा सकते हो. तो पहले आपको उस ब्रिज लोकेशन की, जहां पे आपको जिस जगह का कैचमेंट चाहिए, तो पूरी नदी दिखा दी उसने. अब आपका ब्रिज कहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, वो निकालने के लिए आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए. वो कैसे निकालोगे? वो तो सर हमें पहले ब्रिज साइड पे जाके और अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता करना पड़ेगा. वो कैसे करेंगे बताओ, क्या तरीका है उसका? सर ब्रिज साइड पे जाके और मतलब हम अपना इवन व्हाट्सएप के थ्रू भी अब तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपना शेयर कर सकते हैं किसी के साथ. बाकी गूगल पे आप देख सकते हैं कि आपकी लोकेशन जो है, आपकी लोकेशन का वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे देगा. वेरी करेक्ट, दैट आई वांटेड टू लिसन यू, कि आपका जो गूगल मैप है, गूगल मैप आपको कहीं का भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप निकाल सकते हैं. बहुत सिंपल तरीका है. आपका गूगल मैप आपके मोबाइल पे है तो आप 2 मिनट खोलिए, मैं आपको बताता हूँ. गूगल मैप खोलिए आप लोग. आपकी लोकेशन का तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता ही देता है. मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी दूसरा, आप गूगल मैप पे किसी दूसरी जगह का कोई जगह देख सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई जगह या कोई ब्रिज, आपकी लोकेशन. इज इट पॉसिबल? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बाद में बात करता हूं. आप वहां पे अपना पॉइंटर लेके जा सकते हैं गूगल मैप पे, वो तो कर सकते हैं ना. 10 सेकंड की उंगली रखने पे आपका एक पॉइंटर आ जाएगा और वो पॉइंटर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता देता है. ऊपर फिगर्स है सर, 2206 ये फिगर्स है सर उसमें. करेक्ट, ये बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है.
यस सर, और 82 आया सर, मुझे सर 82.14 करेक्ट। तो आप कहीं भी जहां भी 10 सेकंड के लिए उंगली रखेंगे आपका वैल्यू दे देगा। क्लियर? बिल्कुल सर। वो एक रेड कलर का डॉट आता होगा आपको, है ना? यस सर। और उसके ऊपर वैल्यू लिख के आ गई है, जो आपने डॉट दिया उस डॉट की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, दैट टू इन डेसिमल। डेसिमल के बाद भी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में आती है। बॉक्स में आता है सर, वो मैसेज बॉक्स में आता है, वो ऊपर में टैग बॉक्स आता है, उसके अंदर आता है ये 22.0493949, बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस जगह पे भी आपको उंगली रखेंगे वो जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कर देगा। तो आपको जो एरिया आपका है वो एरिया इस पे निकालिए और वहां को 10 सेकंड तक वहां आपको उंगली को दबा के रखें, आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। मिल गया, बिल्कुल एक्चुअली मिल रहा सर। मिल गया ना? गॉट इट सर। और कोई एक्सरसाइज किया किसी ने? हाँ मिल गया सर। करेक्ट सर, क्लियर सर, है ना? जो भी है मैं मतलब लाइव ही करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ भी अभी जो बताऊंगा घर का होमवर्क भी दूंगा, थोड़ा सा आप लोग करेंगे, यू विल एंजॉय दिस, ताकि कल की क्लास में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज, है ना? आज मैं आपको टूल्स सिखा रहा हूँ, कल इस पे पूरा मैं इसकी कैलकुलेशन करके बताऊंगा आपको, है ना? एक तो हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल दिए, उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को भुवन पे यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है? जैसे हमने यहाँ वो एंट्री किया उस वैल्यू को, ये वो जगह को ढूंढ के लेके आएगा, है ना? सपोज करो आपने बोला, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 24, कोई भी एक साइट है 24,75, ठीक है? कोई भी जगह मैंने लिया है, ये देखिए ये जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 2475 है, दिख रहा है आपको रेड कलर का डॉट? आपका जो भी आपका वैल्यू आया वो डॉट में मैं अगर पॉइंट में लिखूंगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने किया, तो आपका इसका वैल्यू दे दिया। बात समझ में आई? जी सर। है ना? अब आप देखिए इसको, मैंने कोई भी जगह का, किसी भी जगह, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ पे हूँ, मैंने ये जगह का वाटर चैनल कोई भी लाइन देख रहा हूँ, ये मुझे पानी का चैनल दिख रहा है और मुझे इस जगह ब्रिज बनाना है, ठीक है? अब मुझे यहाँ कहीं ब्रिज बनाना है, ये देखिए ये जगह मुझे ब्रिज बनाना है। ये एक इन्होंने नया मेथड निकाला है कि जस्ट मैंने क्लिक किया और ये कैलकुलेट, अभी थोड़ा सा इनका इनिशियल स्टेज पे है और इसको खुद ये अपने आप उसने कैचमेंट प्लॉटिंग चालू कर दी। जो मैंने क्लिक किया ना, इस वाटर चैनल के अपस्ट्रीम की सारी कैचमेंट प्रॉपर्टीज ने कैलकुलेशन करना चालू कर दी। तो कभी ये कर पा रहा है, कभी क्या वहां का जो सर्वर पे बहुत सारा लोड है, कभी कभी ये स्लो होता है। तो मैं ये तो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्चुअल में मैनुअली हम इसको कैचमेंट कैलकुलेट करना मैं बताऊंगा कि हम कैसे कैसे इसके ऊपर जाके कैलकुलेट करते हैं। एक ये मेथड है, ये डायरेक्ट कैलकुलेट अभी कर रहा है, ये मैंने इसको जूम किया था, कैलकुलेट कर रहा है। अभी देखिए ये डाटा ही पूरा नहीं निकाल पा रहा है, डिक्लाइन कर दिया उसने, नहीं कर पा रहा है। तो कई बार इसका सर्वर डाउन होता है तो ये नहीं करता है, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए सेकेंडरी टूल करके आपको दिखाना चाह रहा था। कई बार कर भी देता है ना, घर पे एक्सरसाइज करके आप लोग देख सकते हो। तो कभी भी कोई भी जगह का कैचमेंट एरिया भी ऐसे ये दबा के निकाल देता है। मैप बेस हाइड्रोलॉजी, किसी भी कैचमेंट एरिया का आप छोटा सा करो, ट्रायल मारते हैं। ये देखिए सपोज इस जगह को मुझे निकालना है, आई विल जूम इट, गो टू टूल्स, टूल्स में कैचमेंट में। सो दिस इज द अबाउट भुवन का मैंने आपको ब्रीफ दे दिया। सो कल जो एक्सरसाइज करूंगा
उसका मैं एक आपको ब्रीफ बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और वही एक्सरसाइज कल करके बताऊंगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये एग्जाम्पल चंबल सब जोन का है, आप किसी का भी कर सकते हैं, कोई भी एरिया, अपने एरिया का भी खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। सो हियर आई एम एबल टू सी द चंबल सब जोन गुना मक्सी सेक्शन। दिस इज द ब्रिज नंबर 221, किलोमीटर 190 ऑफ रतलाम डिवीजन, वेस्टर्न रेलवे। इसका एरिया का नाम है चौपानी नाला। इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये हमको मिला, ठीक है। इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो सकता कई बार क्या है टोपो शीट में, इसमें थोड़ा फर्क होता है अगर टोपो शीट वगैरह से देते हैं। इवन अगर आप अभी लेटेस्ट जो है, जो मैंने अभी आपको मेथड बताया था कि आप उस लोकेशन को, ये चौपानी नाला को इसमें अपने गूगल मैप पे करके लिखाएं तो एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है। वो लोकेशन को फिर आप गूगल करके बाद में या तो गूगल अर्थ या गूगल मैप पे आपने देखा उस पर करेक्शन मतलब देख लें एकदम एग्जैक्ट है कि देखिए इस टाइप से आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं कर पाए, ये मैंने अपने मोबाइल का ही प्रिंट स्क्रीन लगाया है। क्या किया, सिर्फ 10 सेकंड तक मैंने ये जगह को जूम करके लिया, ये चौपन नाला को मैंने अपनी साइड ढूंढी और इसको प्रेस किया तो ये पॉइंट दब गया और इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दिया। दिख रहा है आपको ड्रॉप पेन करके? ये बेसिकली मेरे मोबाइल की प्रिंट स्क्रीन है, ठीक। तो ये इस टाइप से गूगल मैप से मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल लिया। अब उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को भुवन साइट पे आपको दिखाया था, गए थे, उस पे जाने के बाद में उसे ओपन भुवन साइट HTTPS जो भी है आपको बताया था, भुवन 2D किया, बेस हाइड्रोलॉजी में गए थे, वहां पे ड्रॉ टूल है। देन इस टूल को कैसे यूज करना है कल करूंगा, आपको जस्ट एक्सरसाइज करके बता देता हूं। कलर पिकर, देन चेंज द कलर पिंक और रेड, क्लिक सिंबल, ड्रॉ पॉलीगॉन, देन ड्रॉ कैचमेंट एरिया, देन फाइन ट्यून कैचमेंट एरिया, देन क्लिक ऑन कैचमेंट। ये बेसिकली ये सब स्टेप्स इसके हमारे कैचमेंट एरिया के हैं। और उन स्टेप को ले जाने के बाद में मैंने उस कैचमेंट को एक डायरेक्ट मेथड जो मैंने अभी यूज कर रहा था कि उसको ओनली प्रेस करने पे भी मेरा कैचमेंट निकल आता है। ये देखिए, ये प्लॉटिंग हाथ से करने पे, टूल से करने पे इस टाइप से प्लॉटिंग होती है। दिख रहा है आपको लाल कलर का? तो ये हम मैनुअली कर सकते हैं और दैट टू मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है और एकदम परफेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं भी बाउंड्री एक दूसरे को क्लैश नहीं कर रही है। देख रहे हैं? इसका बस थ्योरी यही है कि जहां भी आपको दोनों वाटर स्ट्रीम दिख रहे हैं उसके बीच में से निकलना है। योर रिच पॉइंट इज इन बिटवीन द बोथ बाउंड्रीज। दैट इज द मेन क्लू ऑफ कैलकुलेटिंग दिस मेथड, है ना। तो भुवन मेथड इज हमारा कि दोनों रिज लाइन इज इन बिटवीन द वाटर स्ट्रीम्स, वेयरएज कंटूर लाइन मेथड में उसके परपेंडिकुलर जानना पड़ता था। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि रिज लाइन भी परपेंडिकुलर होती है कंटूर के और वाटर स्ट्रीम भी परपेंडिकुलर होती है। कई बार हम उसमें लोएस्ट और हाईएस्ट का कंफ्यूजन हो जाता है मैनुअल में, बट यहाँ ऐसा कंफ्यूजन का कोई डाउट ही नहीं है। ये देखिए, इसके अंदर सारी की वाटर स्ट्रीम है, मतलब ये ब्रिज पे इतनी जगह से पानी आ रहा है। तो नेक्स्ट इसको हम ये डाटा जो भी मिला, इस इलेक्ट्रॉनिक डाटा को हम गूगल अर्थ पे ट्रांसफर कर लेते हैं। गूगल अर्थ को ट्रांसफर करने की इसके मेथड दिया है, कल हम एक्सरसाइज करेंगे, आपको बताऊंगा। आपको ये पूरा स्टेप्स आपसे शेयर कर देता हूँ, यू कैन यूज इट। देन मेथड ग्रेविटी, फिर इसके बाद में हमारा इसके लॉन्गेस्ट चैनल और ये दोनों गूगल अर्थ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको कैलकुलेट करने के बाद में थर्ड पॉइंट इज अ सेंट्रोइड पॉइंट। सेंट्रोइड पॉइंट निकालने की 3 मेथड है, ग्रेविटी मैनुअल मेथड, एंड पॉइंट मेथड, देन कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट में शूलेस मेथड। सो ग्रेविटी मैनुअल मेथड तो वही है जो आपको बताया था कि इसमें ग्रेविटी मेथड के बारे में बताता हूं मैं, जस्ट थ्योरी आज बता देता हूं, कल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो सपोज करो ये शेप है हमारा ग्रेविटी में, है ना। अब मैंने इसको 3 जगह मैंने
इसमें होल किया, एक जगह होल, दूसरी जगह कोई होल और तीसरी जगह होल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पिन लेके इसको लटका दिया, तो ये ग्रेविटी के कारण इस टाइप से लटकेगा कि इसकी सीजी एक लाइन में आ जाए। तो ये जैसे शेप में आएगा, दूसरा एक प्लम बॉब हम ऐसा खरीद एक लगा के रखते हैं, ये प्लम बॉब रहता है। ये पहली लाइन हमारी, हमने इसको लटकाया तो यहाँ से क्रॉस हो रही है। दूसरी बार जब हम इसको यहाँ पे हैंग, इसको इस पॉइंट को हम यहाँ लेके जाएंगे ऊपर, इस पॉइंट को यहाँ लेके जाए, है ना। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। तो ए पॉइंट की ये लाइन आ गई, बी पॉइंट को जब हम ऊपर से लटकाया तो ये लाइन आएगी। फिर जब हमने इसको सी पॉइंट को ऊपर लेके जाके लटकाया तो उस समय जो लाइन आई, सी पॉइंट की लाइन ये आई। तो ये लगभग तीनों लाइनें एक ही जगह पे काटती हैं, या कभी एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का सीजी को हम सीजी मान लेते हैं। इस टाइप से ग्रेविटी मेथड में उस शेप को काट के बाय वेट हम ग्रेविटेशनल मेथड से निकालते हैं। दूसरा मेथड एक है अर्थ पॉइंट मेथड। बेसिकली अर्थ पॉइंट मेथड जो है वो एक गूगल अर्थ का ही एक्सटेंशन है। बेसिकली इट इज ए कैलकुलेटर वेरियस डाटा, लेकिन इट इज ए पेड साइट। 5 आपके डिटेल निकालने के लिए फ्री करेगा, 5वें के बाद में वो आपसे पैसा मांगने लगता है। सो इसकी वैल्यू और इस मेथड की वैल्यू लगभग सेम आती है, एकदम एग्जैक्टली, लगभग भी नहीं, पॉइंट के 4 डिजिट तक भी सेम आता है। ये मेथड मैंने आपको ये बता के रखा है, शूलेस फार्मूला मेथड। तो कोऑर्डिनेट मेथड को आप गूगल में ढूंढेंगे, इस फार्मूला मेथड उसे भी निकाल सकते हैं। ये देखिए कैसे है, प्रिंसिपल क्या है वो, ये हमारा कैचमेंट एरिया का शेप है, हमारा बहुत सारे सेक्टरों में भुवन जो भी ले क्या है, हमारे के बॉर्डर के कोऑर्डिनेट दे देता है, वैल्यू देता है। हमें मोस्टली वाई अगर वर्टिकल तो एक्स जेड की जरूरत है, जेड को मानना है तो एक्स की। तो ये है 1 2 डिवाइड हुए, हमारे पास कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट फार्मूला था कि किसी भी अगर हमें कोऑर्डिनेट के सीजी करना है तो एक इंटरनल जो भी आया है ना, सीजी है, इसका है, हर एक का सीजी आएगा, उसके सीजी में अगर हम डिवाइड करें और उसमें मिला के तो फिर हमें कंबाइंड सीजी मिल जाएगा, का एक सीजी और उसका कंबाइंड सीजी ये समझे जो है ये this is of a इसका x डायरेक्शन में जो आपका x1 फिर पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरे कोऑर्डिनेट का x, का टाइप से सी में कोऑर्डिनेट और उसका एरिया पर कोऑर्डिनेट, मतलब पर एरिया है वो निकालेंगे x2 xy1। ये आपको करना कुछ नहीं है, ये मैं जस्ट आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ। This principle, this theory, this formula is called Shuless formula. एक्सेल पे प्रोग्राम इसको इनपुट के
कर देगा, पूरा एरिया निकाल देगा, CXCY हमारा टोटल का CXCY निकाल के, इंडिविजुअल CXCY निकाल के, फिर उसका सबमिशन करके जो बाहर बाद में वैल्यू सीधा CXOCY की वैल्यू निकाल देगा। तो ये मेथड है उसको निकालने का। एक्सेल में जाने के बाद सेंट्रोइड निकालने के लिए इसको हमें एक्सेल शीट को जो हमने वहां पे गूगल अर्थ से हमने किया था उसको हमने कैच जी के थ्रू जो फाइल थी उस फाइल को हमने एक्सेल शीट पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में इस कोऑर्डिनेट को बेसिकली एक्सेल का ही प्रोग्राम है कि उसको डाटा में टेक्स्ट टू कॉलम करके उसको डिलीमिट करके हम इसके कॉमा वगैरह को उसको डिलीट करके उसको हम ट्रांसपोज करके नॉर्मली रो फॉर्म में ले आते हैं और इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। ये वाले फार्मूले में जो बताया ना, ये येलो कलर में, ये बेसिकली येलो इज इनपुट। यहाँ से हम ये एक्सरसाइज करके इनपुट करते हैं तो सीधा हमें कोऑर्डिनेट आ जाता है। कल मैं प्रैक्टिकली एक्सरसाइज कर आपके बताऊंगा। तो वो शूलेस फार्मूला का मतलब ये है कि जो मैंने आपको यहाँ बताया था, एक का दूसरे, दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथे से आपस में ये बंधा हुआ रहता है जैसा कि लेस बंधी हुई होती है। दैट्स व्हाई दिस इज फार्मूला इज कॉल्ड। आप गूगल पे कहीं भी लिखेंगे शूलेस फार्मूला, इसके काफी डिटेल आपको मिल जाएगा। सो इस मेथड बेसिकली जो आपका कोई भी एनी सॉफ्टवेयर जो भी कैलकुलेट करके देता है या इवन जो आपका ग्रेविटी से निकाले, इसी मेथड में सेम वैल्यू आती है। बिल्कुल पॉइंट के भी 4 डिजिट आगे तक भी सेम वैल्यू आती है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अबाउट दिट, वी मे डिस्कस ऑन दैट। आया समझ में? इसकी थ्योरी समझ में आई आप लोगों को कि नहीं? लगता है कोई समझ में आई सर, थोड़ा समझ में आई सर, थोड़ा प्रैक्टिस करने से और क्लियर होगी। बिल्कुल, प्रैक्टिस कल करके बताएंगे अपन। यस सर, वो एकदम क्लियर होगी, है ना। मैं इसलिए रुक रहा हूँ कि आई नीड सम आपका डाउट हो या एप्रिसिएशन हो या कुछ समझ में कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हो रही हो, क्योंकि इट इज वेरी सिंपल, जस्ट फार्मूला बेस है। और ये भी मैंने एक्सेल पे बना दिया है ना। आपको शेयर करूंगा, आपको सिर्फ इनपुट डालना है और आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा, है ना। एक्सेल शीट अभी मैं दिखाता हूँ, इसको क्लोज करने के बाद एक्सेल शीट भी दिखा दूंगा कि उसमें क्या क्या हम कैलकुलेट करते हैं। देन हमारा सीजी आ गया। सीजी के बाद में हमने एलिवेशन प्रोफाइल को हम इस पे गूगल अर्थ पे हम एलिवेशन प्रोफाइल निकालते हैं। उसका ये मेथडोलॉजी उन्होंने ये दिया है ना। ये हम कल एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। और उसकी वैल्यू निकालने के बाद में फिर एक्सेल शीट पे ये हमें गूगल अर्थ पे हमें ये डाटा मिल जाते हैं। आपको दिखाऊंगा आगे, एक डाटा आता है तो गूगल अर्थ से ये डाटा मिल जाते हैं। वो हमें डाटा को इनपुट यहाँ करने के बाद डायरेक्ट स्टैटिकल स्लोप, कल आपको बताया होगा कि जो इक्विवेलेंट स्लोप निकालने का फार्मूला सिग्मा LI DI -1 ये वाला फार्मूला है, ये इनपुट आप निकालिए और उससे आपका स्टैटिकल स्लोप आपका निकल के आ जाएगा, है ना। सो देन कैलकुलेशन ऑफ LC हमारा ये आ गया। अब आपको देखिए एक ही ग्राफ में मैं तीनों चारों चीज दिखा रहा हूँ। रेड कलर में जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है शीट, ये गूगल अर्थ पे है, कैचमेंट दिख रहा है। येलो कलर का जो दिख रहा है वो लॉन्गेस्ट स्ट्रीम, और यहाँ आप देख रहे हैं इस पे 13.9 किलोमीटर। इट मींस जो मैंने एरो दबाया है वो एरो बता दिया उसने LC की वैल्यू। 13.9 इज नथिंग। यहाँ पे ये CG है, ये CG का टैग है। जो CG हमने निकाली थी उसको हमने सीधा सिर्फ इसमें वैल्यू दे दी तो CG वहां फिक्स हो गया। और इसके परपेंडिकुलर मारने के बाद में 432 उसकी हाइट है। और ये देखिए यहाँ पे दिख रही है 13.9 432 हाइट। और ये जो आपका ये टॉप लेवल से लेके नीचे तक उतरते उतरते पानी जो आ रहा है, ये हमारी ब्रिज लोकेशन है और ये साइड की लोकेशन है। ये प्रिंटेड स्क्रीन है, अदरवाइज यहाँ पे जब कर्सर घुमाऊंगा तो ये हमारा एरो भी उसी स्टाइल में घूमेगा। और ये आप देखिए कैचमेंट एरिया, कल यही एक्सरसाइज में जब करके बताऊंगा यही फिगर बन के आएगा, ठीक है। सो इस हिसाब से आप कैचमेंट एरिया, लॉन्गेस्ट स्ट्रीम L, सेंट्रॉइड, CXCY, LC और SC इक्विवेलेंट स्ट्रीम, यही 5 डाटा चाहिए हमें निकालने के लिए। यस सर। तो दैट वी विल गेट, एंड बाकी फिर जो आपको ऑलरेडी बता दिया था उसमें इनपुट डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड of calculating of catchment area.
कैचमेंट एरिया प्रॉपर्टीज। सो जस्ट अभी तो मैंने आपको थियोरेटिकल बताया है, कल प्रैक्टिकली हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक होमवर्क आपको, कि आप गूगल भुवन साइट पे जाएं, जो मैंने एक एक्सरसाइज दिया था उसके हिसाब से इसको जस्ट देखें, तो आपको काफी कुछ हद तक कल क्वेश्चन करने के लिए आपके पास रहेगा, और समझने में बिल्कुल आप 100% समझ जाएंगे। आपको फील्ड पे करना है तो इमीडिएटली आप कर सकते हैं, या इनफैक्ट अगर आपके ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ओनली लेके आइए, वी कैन सॉल्व इट, या इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ये देखिए एक्सेल शीट जो मैं आपको शेयर करूंगा, एक्सेल शीट ये है, दिस इज एक्सेल शीट। इसमें एक तो अगर डेसिमल में अगर हमारे पास डिग्री मिनट सेकंड में है तो उसको डेसिमल में बदलना है, तो उसको डायरेक्ट कन्वर्टर बना दिया कि डिग्री मिनट डिवाइडेड बाय 60, सेकंड डिवाइडेड बाय 3600, तो हमें डेसिमल में आ जाता है, उसका सीधा डायरेक्ट वैल्यू लिखना का ये तरीका मैंने निकाल दिया। दूसरा, जो कैचमेंट की हम प्रॉपर्टी निकालते हैं वो इस टाइप से हम कॉपी पेस्ट करने की बात आती है, और उसको किस एरिया में हम वो कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने दिख रहा है आपको डार्क, है ना, कैसे करते हैं वो सब आपको कल मैं निकाल के बताऊंगा। ये डाटा है बेसिकली, कोऑर्डिनेट डाटा जो हमारा है ना, वो सीधा इस पे पेस्ट करने के बाद ये डाटा को हमें प्रोसेस करना है। इस डाटा को सीधा हम ये वाले फार्मूले में पेस्ट कर देते हैं। आपको यहाँ ये इनपुट दिख रहा है ना, ये लेफ्ट में ये जो इनपुट दिख रहा है, ये इस इनपुट फाइल में हम डाल देते हैं, ये अपने आप कैलकुलेट करके Cx और Cy की वैल्यू यहाँ निकाल देता है। ये सारे फार्मूले को बेसिकली कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सा इस फार्मूले को यहाँ पे लाके रख दिया, इस फार्मूले को बना दिया, और ये डायरेक्ट Cx Cy की वैल्यू में मिल गई, Cx Cy की वैल्यू मिल गई, और उससे हमारा ये जो डिस्टेंस निकाले थे, जो कोऑर्डिनेट आए थे, उन कोऑर्डिनेट को किलोमीटर और लॉन्गे स्ट्रीम में जो हमारा RL थी स्ट्रीम के, उससे सीधा ये वैल्यू आ गई हमारी इक्विवेलेंट स्लोप 2.6। ये हमारा टोटल का एक जगह समरी फॉर्म में भी हमारे पूरे डाटा हमारे पास आए। तो विद दिस एक्सेल शीट के साथ में हम काम करेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन वगैरह जो आपको करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको इनपुट डाटा मिल जाएगा। तो एक तो ये मेथड है सेंट्रोइड निकालने का, दूसरा हमारा इसका जो सॉफ्टवेयर वाला है वो भी मैं कल आपको बता दूंगा कि वो कैसे 2 मिनट में निकल जाता है, लेकिन उसमें यही है कि 5 से ज्यादा बार नहीं निकाल सकते। ठीक, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। ये इनपुट में कौन सा डाटा हम देते हैं? 77.1675 ये जो है वो सर कौन सा डाटा है इनपुट में? ये डाटा जो हमारा पास एक जो फाइल आएगी, हमने कैचमेंट बनाया, उसकी एक फाइल बन जाती है, उस फाइल को हम इसमें पेस्ट करते हैं। ये जो फाइल दिख रही है ना, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर फाइल है इसकी, ठीक है। ये इसकी गूगल अर्थ की एक फाइल है। वो फाइल पे करने के बाद में इसकी कोऑर्डिनेट दिखा रहे ना, कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट सीधे हमें मिलते हैं, उनको हम प्रोसेस करते हैं। बेसिकली इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, किसी भी सॉफ्टवेयर में ना रन करके हम खुद अपने तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। एक्सेल पे सीधा प्रोग्राम बना के दे दिया, और उसमें भी कोई मैंने प्रोग्राम में सिंपल मैथमेटिक्स लगाई है, कोई ज्यादा वो नहीं किया है। कल एक्सरसाइज करेंगे। लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, ये मतलब ये वाला वो वाला फिगर नहीं है इसमें, ये वही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। ये मैंने आपको समझाया था ना कि जो पूरा प्लॉट करने के बाद में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हर कोऑर्डिनेट के आएंगे। बेसिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है? इट इज ए कोऑर्डिनेट। जी हमारे अर्थ की लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है कि कौन सा फिगर है? देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है आप बताएं। व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड सर जो अर्थ का जो सेंट्रॉइड मतलब ईस्ट टू वेस्ट है वो लैटिट्यूड होता है, और नॉर्थ एंड साउथ वाला लॉन्गिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड जो होता है वो ईस्ट एंड वेस्ट वाला होता है सर। हाँ। तो आप हमेशा मोस्टली पहले लैटिट्यूड रहता है फिर लॉन्गिट्यूड, नॉट टू ईस्ट साउथ, सभी के मेथड नॉर्थ टू साउथ सर ये लैटिट्यूड होगा, ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। करेक्ट। लॉन्गिट्यूड मतलब हमारे
जो ईस्ट से वेस्ट का पूरा सर्कल बनता है इक्वाटर पे जो रहता है ना, इक्वाटर पे हमारा जाता है, और जो लैटिट्यूड होता है वो हमारे इक्वाटर से ऊपर की तरफ जाए तो ट्रैफिक ऑफ कैंसर, और नीचे की तरफ आए तो ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमारा 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और ये 23.5 डिग्री नीचे साउथ में। तो दीज आर लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड हमारे पूरे अर्थ के सरकमफ्रेंस पे जो चलते हैं वो हमारा ये है ना। ये देखिए आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर चाहिए तो गूगल अर्थ पे आपको तुरंत मिल जाएगा। ये देखिए ये लैटिट्यूड है ना। लैटिट्यूड मतलब हम जब हम लेफ्ट राइट कर रहे हैं तो हमारा ये फर्क पड़ रहा है। लॉन्गिट्यूड हमेशा ऐसे में हमारा बढ़ता है। ठीक जी जी। तो वो है जो फर्स्ट वाला जो फिगर था लैटिट्यूड था या लॉन्गिट्यूड, मैं वही कहना चाह रहा था। फर्स्ट लैटिट्यूड है जो 77 जो था वो नीचे देखिए, पहला फिगर लैटिट्यूड है, सेकंड फिगर नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्थ साउथ वाला। ओके। और लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट वाला। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो फिगर जो फर्स्ट वाला था दैट इज लैटिट्यूड। वो उसमें जो आप जो उसमें बोल रहे हैं ना, हाँ उसमें पहला फिगर लॉन्गिट्यूड आता है। आप एक्सेल वाला लॉन्गिट्यूड, हाँ एक्सेल वाला प्रोग्राम बोल रहे हैं ना आप? जी जी। हाँ तो एक्सेल में जो ये गूगल अपने प्रोग्राम में लेता है वो पहले लॉन्गिट्यूड लेता है फिर लैटिट्यूड। लेकिन आपने देखा होगा मैंने एक्सेल में जो चेंज करके लिया वो अपने हिसाब से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, एक मिनट दिखाई देता हूँ, जस्ट एक मिनट। ये देखिए ये इनपुट था, पहला वाला था, ये लॉन्गिट्यूड था। अब इसी को वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया लॉन्गिट्यूड में, देख रहे। फिर दूसरा वाला था ये A19 है, दूसरा वाला था लैटिट्यूड, है ना। तो उसको मैंने इसको इलाज करके बताता हूँ आपको। ये देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ दिख रही है आपको, ये वाली है जी जी। और ये लैटिट्यूड है, ये नीचे वाली है। ठीक, ऐसे हर एक के सेल के उसके नीचे वाला ये ले लिया। इसके ये सिंबल क्या दिखा रहा है सर? हैं? ये फैक्टर जो है कौन सा? लॉन्गिट्यूड के बाद ए का वैल्यू जो है ये एरिया, ये वाला ये एरिया निकालता ना, मैंने थ्योरी बताई थी ना आपको। छोटे छोटे ये हर लैटिट्यूड हर कोऑर्डिनेट के बीच के एरिया में बदल देता। तो हर एक का एरिया देखिए इतना सारा निकलेगा। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डबल वैल्यू रहेगी। ये देखिए ये वैल्यू यहाँ तक जा रही है ना, ये डबल वैल्यू जा रही है, लेकिन यहाँ पे मेरे को हाफ हो गई वैल्यू, देख रहे हैं आप। ये 140 है मतलब 280 तक हमारे मिलेगा, क्योंकि ये सेल को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, है ना। बेसिकली आपको कुछ नहीं, इसे सिर्फ पेस्ट करना है और ऑटोमेटिकली आपको XY की वैल्यू आ जाएगी। ये फार्मूला सीधा डायरेक्ट लगाया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाला, ए का फार्मूला लगा दिया। देखिए ए का फार्मूला डायरेक्ट आपको दिखेगा, C19 इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है और हाफ करके लगा दिया, देख रहे हैं आपको। ए का फार्मूला डायरेक्ट लगाया। फिर सेम टाइप से CX का फार्मूला, CS का फार्मूला इन दोनों के बीच में ये CX की वैल्यू या CY का फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लगाया हुआ है और उसका सबमिशन करके डिवाइड कर दिया। बस इन सबका सबमिशन करना है, नीचे तक ऊपर सबमिट कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया। दिस इज द मेथड। ओके ओके सर। सो एक बार आप लोग जरा भुवन पे घूम लीजिए और जो मैंने आपको बताया अपने हिसाब से किसी भी एरिया का यूं ही आप प्लॉट करना चालू कीजिए, तो शायद आपको थोड़ा सा कल डिस्कशन करने में मजा आएगा आपको और ज्यादा समझ में आएगा। दैट आई वांटेड टू से, है ना। इसमें ये टूल अभी आया है, लेकिन कई बार ये जैसे इसका सर्वर अगर डाउन होता है तो वो नहीं तो इमीडिएटली ये कैलकुलेट करके देता है। समटाइम्स रात के समय कभी कभी सर्वर इसका इतना डाउन नहीं रहता है, तो रात को बहुत फास्ट काम करता है। डे में काफी ज्यादा यूज होता है इसका, तो मोस्टली कैलकुलेट करने में उसको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होती है। बट इसीलिए मैंने मैनुअल मेथड निकाल दिया आपको। आप मैनुअल मेथड करने में मुश्किल से जो ये कैलकुलेट करने में जितना टाइम लगाएगा, इससे में भी अपन को 15-20 मिनट के अंदर हम कोई भी एरिया का कैचमेंट निकाल सकते हैं। आपको चाहिए तो एक काम करता हूं मैं,
एक कैचमेंट कोई भी एरिया आपको निकाल के बताता हूँ, अननोन एरिया, ठीक है? तो आप लोगों को एक एक्सरसाइज हो जाएगी। जस्ट ए मिनट, कोई भी एरिया में गया मैं, जस्ट थोड़ा छोटा हो गया साइज। ये देखिए मैप है, मैप किसी भी इस जगह का मुझे अगर जैसे चाहिए तो बहुत बड़ी स्ट्रीम हो रही है, कोई छोटी स्ट्रीम पकड़ो। ये देखिए इसका कैचमेंट ये है पूरा, दिख रहा है आपको ब्लू से? ऑटोमेटिकली कैचमेंट इसने दे रहा है, इस स्ट्रीम का कैचमेंट ये है ना? यहाँ छोटी बड़े का कैचमेंट ये दे रहा है, ये यहाँ का कैचमेंट ये दे रहा है, ये दिख रहा है। अब मान लो मुझे इस जगह का कैचमेंट चाहिए, है ना? ये रोड हमारे निकल रही है, इसका कैचमेंट अगर मुझे निकालना है तो देखिए टूल्स जाऊंगा, टूल्स में ड्रॉ टूल्स में कैचमेंट ये, और यहाँ से मैं सीधा कैचमेंट निकालना शुरू कर दूँ। दिख रहा है आपको प्लॉट होते हुए? ये देखिए ये इस एरिया का कैचमेंट बना दिया, दिख रहा है? इसका कैचमेंट बना दिया, ये इसका कैचमेंट एरिया ग्रीन कलर से बनाया है ना? तो थोड़ा ग्रीन मैच कर रहा, तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ पहले। अब इसको अगर मेरा थोड़ा सा कुछ गलत है तो इसको करेक्शन भी कर सकता हूँ। ये लिया, मुझे करेक्शन करना है, ये देखिए इसको मैं इस लाइन को जहां भी चाहूँ खिसका सकता हूँ। ये दिख रहा है आपको करेक्टेड? ये लाइन मेरी थोड़ा अंदर आ गई, बाहर हो गई, या ये लाइन मुझे और अंदर लेनी है ना? ये मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, जो भी मैं चाहूँ उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये इसके बहुत अच्छा टूल है, वी कैन डू इट। कल हम यही एक्सरसाइज करेंगे, किसी भी एरिया का कहीं भी रैंडमली कोई भी पकड़ के आप निकाल सकते। किया क्या था, मैंने टूल में गया, टूल में ड्रॉ टूल, और ड्रॉ टूल में ये आया, उससे यूज किया। तो यू कैन जस्ट सर्फ कर सकते हैं और थोड़ा सा अगर देख सकते हैं। तो कल मैं यही काम करूंगा आपको, ठीक? सो विद दैट थैंक यू।